everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with a series on the Indian Contract Act, and in the previous video I have discussed about the essentials of a valid contract, in which I have discussed that to be a valid contract, consideration is must. Without consideration a contract is void. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और बिना कंसिडरेशन के कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड माना जाता है, एक्सेप्ट सर्टेन exceptions. If we talk about the consideration that is defined under Section 2D of the Indian Contract Act, according to Section 2D, when at the desire of the promisor or any other person promises to do or to abstain from doing something, then such act, subsistence or promise is called the consideration for the promise. In short, we can say that the term consideration means something in return. मतलब किसी चीज़ के बदले में आपने कुछ दी भाई, आपने किसी से कोई सामान अब लेते हैं तो उसके बदले में क्या करते हैं, उसके बदले में कुछ ना कुछ आप देते हैं. दैट हैज वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. तो दिस मीन्स समथिंग इन रिटर्न, और वी कैन से दैट टू अ प्रो को, दैट इज ए लैटिन वर्ड. तो इफ वी टॉक अबाउट द कंसिडरेशन, दैट इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज ब्रॉट and the promise thus given for the value is enforceable. That is the definition of consideration that is given by Professor Pollock. So according to Professor Pollock, consideration is the price for which the promise of the other is bought and the promise thus given for the value is enforceable. If we talk about the definition given by Professor Blackstone, प्रोफेसर ब्लैकस्टोन जी की जो परिभाषा दी गई है कंसिडरेशन की, उनके हिसाब से द रिकम्पेंस given by the party contracting to the other is known as consideration. So these are the certain definitions which is given by various jurists. If we talk about the consideration, that term is defined in a famous case, Curie versus Misa. This is a famous case in which the definition of consideration is given. Consideration is defined. If we talk about the consideration, that is defined in the famous case, Curie versus Misa. In this case, consideration is defined as a valuable consideration in the sense of law may consist of either in some right, interest, profit or benefit according to the party, or some forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered or undertaken by the other. This is the definition of consideration which is defined in the case of Curie versus Misa. If we talk about the essential एलिमेंट फॉर द कंसिडरेशन, भी कंसिडरेशन के लिए क्या क्या एलिमेंट होने जरूरी हैं, तो देयर आर द सर्टेन एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल टू डिफाइन द कंसिडरेशन. नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट प्रोसीड एट द इंस्टांस ऑफ प्रोमीजर. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको दो पार्टी देखने को मिलती है, वन इज प्रोमीजर अनदर इज प्रोमीजी. तो जो प्रोमिस मतलब जो देता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोमीजर कहलाता है. तो प्रोमीजर के द्वारा कंसिडरेशन प्रोसीड की जाती है, प्रोमीजर के इंस्टांस पे कंसिडरेशन प्रोसीड की जाती है. तो दिस मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज कंसिडरेशन मस्ट प्रोसीड एट द इंस्टांस ऑफ द प्रोमीजर. That is the first essential element. If we talk about the second essential element, that is consideration may be past, present और future. Consideration past भी हो सकती है, present भी हो सकती है, future भी हो सकती है. And the consideration may proceed from the promisee or any other person. Consideration किसकी तरफ से proceed होनी चाहिए, promisee की तरफ से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से. If we talk about the other elements of the consideration, that is consideration must be some value, must be for value in the eyes of law. मतलब consideration का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है कानून की नज़र में, तो दिस में कंसिडरेशन मस्ट बी रियल. जो कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए, एंड इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल आल्सो. इसके लिए ये भी जरूरी है कि जो कंसिडरेशन है वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए. तो दीज आर द सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स which are essential for the consideration. If we talk about the consideration, consideration must proceed at the instance of the promisor. जैसे मैंने आपको पहला essential element बताया कि जो consideration है वो proceed करनी चाहिए at the instance of the promisor. This means we can say that any act or subsistence from an act should be done only if the promisor desires the same. कि प्रोमीजर यदि किसी चीज़ की डिजायर करता है, कोई ऑफर देता है, तो उसके इंस्टांस पे तो काम किया जाता है.
if the act done voluntarily without the request or desire of the promiser, or if it is or if it is done at the instance of any third party, the consideration will not be valid। भाई सीधी बात है कि वहाँ पे जो यदि वो जो कार्य किया जा रहा है, यदि वो मतलब प्रोमीजर के इंस्टांस पे किया जा रहा है, उसकी रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है या उसकी डिजायर पे किया जा रहा है, तभी वो कंसिडरेशन कहलाएगी। तभी वो यदि वो किसी और थर्ड पार्टी के उस पे किया जा रहा है, इंस्टांस पे किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो कंसिडरेशन जो कंसिडरेशन बात की जाएगी वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। तो इफ वी टॉक अबाउट द कंसिडरेशन सेकंड एलिमेंट, दैट इज द कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कंसिडरेशन है वो कौन देगा, प्रोमीजी देगा या फिर कोई और व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। इट मस्ट प्रोसीड। तो दिस मीन्स अनदर एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कंसिडरेशन इज दैट द एक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम एन एक्ट which will constitute the consideration for a contract may be done by promisee or any other person। या तो वो प्रोमिजी के द्वारा खुद वो की जाएगी या फिर किसी थर्ड व्यक्ति के द्वारा उसको प्रोसीड किया जाएगा। दिस मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एज लॉन्ग एज प्रोमिस कैरीज अ कंसिडरेशन इट इज इमटेरियल एज टू हु हैज फर्निश्ड दैट कंसिडरेशन। जब भी कोई कार्य किया जाएगा वहाँ पे जो कंसिडरेशन दी जा रही है, बस कंसिडरेशन होना जरूरी है, ये मायने नहीं रखता कि कंसिडरेशन फर्निश कौन कर रहा है, कौन दे रहा है उस चीज़ को। इफ द प्रोमीजर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू इट, यदि प्रोमीजर उस चीज़ के लिए कोई सवाल नहीं उठाता, कोई उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करता, देन द कंसिडरेशन कैन मूव टू अ पर्सन अदर देन द प्रोमीजी। भी जिसका मतलब हो गया कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमीजी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी दी जा सकती है। इट कैन प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमीजी और द थर्ड पर्सन। तो दिस इज द सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट। और यही जो मैंने बात आपको बताई है, दिस वॉज डिफाइंड इन द केस ऑफ चिन्नम्मा वर्सेस रमैया। ये दैट इज द फेमस केस। इस केस के अंदर इसी चीज़ को डिफाइन किया गया था। इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड एलिमेंट फॉर द कंसिडरेशन, दैट इज दिस, दैट मीन्स कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई भी कंसिडरेशन जो होती है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। दिस मीन्स कंसिडरेशन में बी कैटेगराइज्ड एज पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और द फ्यूचर कंसिडरेशन। एंड कंसिडरेशन मस्ट बी डन सम वैल्यू, मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू मीन्स कंसिडरेशन एक ऐसी होनी चाहिए जिसकी कानून की नज़र में वैल्यू होनी चाहिए। Means consideration must be of some value that has value in the eyes of law. This means consideration must have some value in the eyes of law, and it has been stated by the Supreme Court by the Honorable Apex Court in the case of चिन्नम्मा वर्सेस रमैया। ये इस केस में डिफाइन भी किया गया था और ये कहा गया था कि जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन शैल बी समथिंग विच नॉट ओनली द पार्टीज रिगार्ड but the law can also regard as having some value. This means adequacy of the value of the consideration is must. Inadequacy as evidence of the imposition as well as forbearance to sue. तो दिस में कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। जो कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए कि जिसको आप इमेजिन करके चल रहे हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल as in it should not be physically, it should not be physical or legally impossible in nature. This means consideration will also not be considered real, which it comes with a level of uncertainty। सीधी बात है कि यदि एक अनसर्टेनिटी के ऊपर वो कंसिडरेशन डिपेंड कर रही है तो वहाँ पे वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकती। बिकॉज टू कैरी इट आउट गिवन अंडर देयर आर द सर्कमस्टांसेस, there are the instances when the consideration will become the unreal। भाई कई बार जो circumstances होती है वो ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से जो consideration है वो अनरियल बन जाती है, वो रियल से इमेजिनरी बन जाती है। hence the void in the eye। और यहाँ पे जब कोई कंसिडरेशन रियल नहीं होगी, यदि वो अनरियल हो जाएगी, तो दिस मीन्स दैट विल बी वाइड इन द आइज ऑफ लॉ। दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ देयर इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, यदि वहाँ पे उस कंसिडरेशन को लेना पॉसिबल नहीं ड्यू टू फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, लीगल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, अनसर्टेन कंसिडरेशन की वजह से,
इल्यूजरी कंसिडरेशन की वजह से, या फिर कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग द प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी, यदि कोई प्री एग्जिस्टिंग ड्यूटी के पर इन्वॉल्व कर रही है वो कंसिडरेशन, तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन वी कैन से दैट कंसिडरेशन बिकम्स अनरियल एंड इट इज वाइड इन द आइज ऑफ लॉ. If we talk about the next point that is essential for the consideration, that is consideration must be lawful. जैसा मैंने भी आपको बताया था कि जो consideration होती है ना वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, वो lawful होनी चाहिए. And about it, it is defined under section 23. Section 23 of the Indian Contract Act defines certain circumstances where it involves a legally prohibited act. एक ऐसे एक्ट के बारे में बताता है जो अनलॉफुल है, लीगली इम्पॉसिबल है, दे आर लीगली प्रोहिबिटेड एक्ट. तो व्हेन इट हार्म्स, वो कौन से होंगे लीगली प्रोहिबिटेड एक्ट, ऐसे कौन से कार्य होंगे जिसको कानून की तरफ के द्वारा इसको प्रोहिबिट किया जा रहा है, जिसके लिए कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल हो ही नहीं सकती. तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बताई गई, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन इट हार्म्स अनदर इंडिविजुअल पर्सन और देयर प्रॉपर्टी. यदि वहाँ पे जो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यदि वो किसी व्यक्ति को या फिर उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने वाली हो, या फिर वेदर एन एक्ट इज परसीव्ड और इज इमोरल और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. यदि कोई ऐसा एक्ट करने को कहा जा रहा है उसके बदले में जो इमोरल है, इमोरल मतलब नैतिकता के विरुद्ध है, या फिर वो पब्लिक पॉलिसी के विपरीत माना जा रहा है, या फिर एंटायर एग्रीमेंट विल बी वाइड. इन दिस कंडीशन क्या कहेंगे कि यदि जो चीज कंसिडरेशन है यदि वो इलीगल है, या फिर एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज इलीगल, यदि उसका एक पार्ट भी इलीगल है, इन दैट केस एंटायर एग्रीमेंट विल बी वाइड. पूरा जो एग्रीमेंट है वो वाइड हो जाएगा, वो उसमें कोई भी पार्ट वैलिड नहीं माना जाएगा. दिस मीन्स कंसिडरेशन इज मस्ट टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मैंने आपसे बताया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है. एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 25 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो यही बताता है कि कोई भी एक्ट यदि उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो वो पूरी तरह से वाइड होगा. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन. जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपवाद हर जगह मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे कंसिडरेशन के संबंध में भी कुछ अपवाद बताए गए हैं जहाँ पर कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है फिर भी वो वैलिड माने जाएंगे. ऐसे कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन. यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो नेचुरल लव या अफेक्शन के बिहाफ पर है, मतलब प्राकृतिक जो प्यार है उसके बिहाफ पर है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो कंसिडरेशन है वो होना जरूरी नहीं है. सेकंड वन इज पास्ट वॉलेंट्री सर्विस एंड थर्ड वन इज टाइम बैरड डेप्ट. टाइम बार डेप्ट जो होते हैं उनके अंदर भी कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं होता. जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ कि मान के चलो आपके माता पिता आपको कोई सामान देते हैं, कोई भी चीज़ मोबाइल खरीद के देते हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं देना होता, बिकॉज दे हैव गिवन दैट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. तो वहाँ पे आपके पिताजी या माता जी ने आपको वो किस लिए दिया है? क्योंकि आपको वहाँ पे नेचुरल लव या अफेक्शन है, उसकी वजह से आपको दिया है, और उसके बदले में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है. तो दैट इज द एक्सेप्शन फॉर द कंस्टिट्यूशन. If we talk about the doctrine of privacy of the contract, that is also one of the most important part of the Indian Contract Act. That is also one of the most important question. So if we talk about the doctrine of privacy of the contract, according to section 2H, section 2H जो है इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा बताता है. According to section 2H, a contract is an agreement between the two parties enforceable by the law. दैट इज बैक्ड बाय सम कंसिडरेशन. भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाया जा सकता है, और जिसके पीछे एक कंसिडरेशन होनी चाहिए, बैक्ड बाय सम कंसिडरेशन. इफ वी टॉक अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉमन लॉ प्रिंसिपल which implies that only parties to a contract are allowed to sue. कि केवल जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरी प्रोमिजर और दो प्रोमिजी है, केवल उन्हीं को अलाउ होगा कि वो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकते हैं टू एनफोर्स देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज.
कि यदि वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई राइट्स या लाइबिलिटीज कहीं कहीं ना कहीं एनफोर्स की वो आती है, तो उसको एनफोर्स करवाने के लिए वहाँ पर जो पार्टीज है, केवल वो खुद पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, केवल वो कोर्ट में जा सकती हैं। एंड नो अदर थर्ड पर्सन इज अलाउड टू कन्फर द ऑब्लिगेशन। किसी और व्यक्ति को इस ऑब्लिगेशन को नहीं दिया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नो अदर स्ट्रेंजर इज अलाउड टू कन्फर द ऑब्लिगेशन अपॉन द पर्सन। भी यहाँ पे आप क्या कहेंगे, अपॉन द पर्सन हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो यदि कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में वो पार्टी नहीं है, तो वहाँ पे उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आप मतलब यदि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी नहीं है तो दैट मे ही कैंट बी कंपेल्ड। वहाँ पे उस व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि आप इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लाइबिलिटीज अराइज हुई है या राइट्स अराइज हुए हैं, आप उसे पूरा कीजिए। तो दिस मीन्स द rule of private is basically based on the interest theory। जो रूल ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट थ्योरी से इसका जन्म हुआ है, जो ये कहता है कि ओनली द पर्सन हैविंग द इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड एज पर लॉ इज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। यदि कोई डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इंटरेस्ट थ्योरी के बेस पर बनाया गया है, जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट अराइज होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दैट पर्सन इज ओनली एंटाइटल्ड एज पर लॉ टू प्रोटेक्ट द राइट्स। कि वहाँ पे वो व्यक्ति जिसके राइट्स का हनन हुआ, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, केवल वही व्यक्ति अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सकता है और उसके लिए कोर्ट में जा सकता है। तो दिस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रोमीजर है या प्रोमीजी है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओनली दैट पर्सन इज लाइबल टू एनफोर्स देयर राइट्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। केवल वही व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपने राइट्स को एनफोर्स करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ द रमेश मेक्स अ प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स टू अरम, देन इन दिस केस इफ रमेश ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, देन ओनली अरम हैज राइट। यहाँ पे अरम को केवल राइट होगा कि टू प्रोसिक्यूट अगेंस्ट द रमेश। भी नेचुरली कि यदि रमेश और अरम के बीच में कोई आप प्रॉमिस हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और रमेश उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता, उसको ब्रीच करता है, तो इन दिस केस जो अरम है, दैट इज द ओनली पर्सन हु हैज राइट टू गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स दैट राइट। उस राइट को एनफोर्स कराने के लिए केवल अरम ही रमेश के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। नो अदर पर्सन विल बी अलाउड टू प्रोसिक्यूट अगेंस्ट द रमेश। यहाँ पे किसी और दूसरे व्यक्ति को उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो रमेश के खिलाफ केस फाइल करे। तो दिस मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो ये बताता है कि जहाँ पर कोई भी पार्टी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यदि वहाँ पे किसी भी पार्टी के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया जाता है, तो केवल वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज है, मीन्स प्रोमीजर या प्रोमीजी में से, दैट कैन ओनली गो टू द कोर्ट टू एनफोर्स देयर राइट्स। केवल वही पार्टी जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज है, वही कोर्ट में जा सकती हैं कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने के लिए, टू एनफोर्स देयर राइट्स। तो दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ द प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट एसेंशियल इज अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, और पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। और यहाँ पे ये भी जरूरी हो जाता है कि जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पार्टीज है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी की कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है, एंड दो शुड बी ए वैलिड कंसेंट। और वहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो भी एक वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर हैज बीन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी। यहाँ पे एक पार्टी के द्वारा, बाय वन पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया जाना चाहिए, तभी डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा। दिस मीन्स ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर। केवल वही पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज हैं, केवल वही दोनों उनमें से वही पार्टी कोर्ट के अंदर एक उनके खिलाफ केस फाइल कर सकती है, आपस में केस फाइल कर सकती है। नो अदर पर्सन विल बी अलाउड to sue, to prosecute
अगेंस्ट द अदर पार्टी, भी वहाँ पे वो दूसरे व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जा सकता। इफ वी टॉक अबाउट द इंग्लिश लॉ वर्सेज इंडियन लॉ, about this, as a general rule, both the Indian as well as English law are similar to this, similar to each other as on this point. यदि हम इस पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे इंग्लिश लॉ या इंडियन लॉ दोनों के दोनों इस पॉइंट पे सेम सिमिलर पाए गए हैं। वहाँ पे इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इन्हें लीडिंग, यहाँ पे कहोगे इन्हें लीडिंग इंग्लिश केस, यहाँ पे एक इंग्लिश लीडिंग केस था ट्विडल वर्सेज एटकिंसन का जो केस था। इन दिस केस ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ कैन sue as he was not both a stranger to the contract as well as stranger to the consideration। भाई नेचुरली कि यहाँ पे जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे केस फाइल किया था कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, ना तो वो स्ट्रेंजर वो जो पार्टी थी वो ना तो वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था, ना ही वो उसने कोई कंसिडरेशन वगैरह पे की थी। तो ऐसी स्थिति में वो जो प्लेंटिफ था वो केस फाइल नहीं कर सकता था। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज अगेन एनालाइज्ड इन द केस ऑफ डनलप टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज and company limited. That was another case in which this privacy of the contract was again analyzed. डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इस केस के अंदर भी एनालाइज किया गया था। इन दिस केस इंडियन कॉन्टेक्स्ट आल्सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस केस यहाँ पे ये कहा गया था कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि हम देखें तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश लॉ के अंदर है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इंडियन लॉ एंड द इंग्लिश लॉ इन दिस ऑन दिस पॉइंट इज दैट a person who is stranger to the consideration can sue, whereas in England we can't। भी सीधी बात है कि यदि हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रेंजर है पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रेंजर है और उसने कंसिडरेशन यदि पे की है तब भी वो उसके संबंध में केस फाइल कर सकता है। परंतु यदि हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इफ यू टॉक अबाउट द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्सेप्शन आपको सब जगह देखने को मिलती है, तो यदि हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो कुछ एक्सेप्शन भी, इसके अपवाद भी बताए गए हैं। जैसे पहला अपवाद आप कह दें, ए बेनिफिशरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक व्यक्ति जो बेनिफिशरी है, जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है, यदि वो कोई बेनिफिशरी है तो वो भी इसके संबंध में केस फाइल कर सकता है। सेकेंड वन इज कंडक्ट acknowledgement or the admission, and the third one is provisions for the maintenance or marriage under the family arrangement. So these are the certain exceptions about the doctrine of privacy of the contract। जहाँ पे doctrine of privacy of the contract apply नहीं होगा, ये वो exceptions हैं। तो this was all about the consideration as well as doctrine of privacy of the contract. If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.